future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Welcome to everyone present here. Today, I, Panawalia, on behalf of DD Coaching Institutes, with special emphasis from Harkirat sir, who took this initiative to conduct this seminar, would like to welcome you all with a round of applause. आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं ताकि हम एनडीए के बारे में बातचीत कर पाए। एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एक ऐसा एग्जाम है जिसे इंडिया का 5th टफेस्ट एग्जाम कहा जाता है। अकॉर्डिंगली टू अ सर्वे, ये एग्जाम कम से कम 8 से 9 लाख एस्पिरेंट्स हर साल इस एग्जाम को देते हैं, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 400 से 500 बच्चे सिलेक्ट हो पाते हैं। और आज हमें गर्व है जो 2 लोग जिन्होंने एनडीए एग्जाम को क्रैक किया है वो हमारे बीच मौजूद हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम निकुंज सूद एंड अंशित ठाकुर विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। आपके जितने भी क्वेरीज हैं एनडीए एग्जाम को लेकर, जितनी भी डिफिकल्टीज आप आने वाले फ्यूचर में फेस करने वाले हो, उन पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे और आपको सिखाएंगे कि कैसे इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो विदाउट फर्दर आई डू, इनकी इंट्रोडक्शन और अच्छी तरह करने के लिए आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन लावण्या एंड वानी। Good afternoon everyone. So to begin with, हम सभी को पता है and like Panit mentioned, हम यहाँ गैदर हुए एक NDA NA सेमिनार के लिए। And to get you all aware, from the past 3 years, सिर्फ 3 candidates ने NDA clear किया है from Solan, and out of which 2 gems are present today with us, Mr. Anshit Thakur and Mr. Nikunj Sood. And these 2 gems are a very important part of the leading coaching institute. Mr. Anshit Thakur, he was born in Rome and was brought up in Solan. He graduated school in the year 2021, and after that, in his 3rd attempt, he cleared NDA with an All India rank of 337. He was recommended from 31 SSP, Kapurthala, Punjab, and after that he joined Indian Army on 8th August 2022, and now he is currently in his 5th term. Mr. Nikunj Sood, born and brought up in Solan. He graduated school in 2020. After a drop of 1 year, he cracked NDA with an All India rank of 144. He was recommended from Bhopal 33 SSP, and now he is in the Indian Naval Academy in his 5th term. So now they are here to resolve all your queries and guide you through your journey. Also, because it is for the students and by the students, they at some point were also where we are today. Facing all the problems and teenage hormones, which they handle well, and so we can. Today, they are at this level in life, all because of their hard work and unbreakable determination. So now let's finally start with the seminar, and I request Mr. Nikunj and Mr. Anshit to take over. Good afternoon, everyone. First of all, before starting the session, I would like to thank Harkirat sir for giving us this opportunity. कि आप सब यहाँ पे आए। We are your seniors only. We are not very बहुत बड़े नहीं हैं आपसे। We had passed in 2020 3 years I was in this place only, studied maths with Harkirat sir. And this guy also had studied 2 years maths in this place only. हम यहीं से निकले इंडिया के लिए। And I would like to also thank Vani and Lavanya for introducing us. So okay, before anything, this is a note I want everyone to read. I have made this specially for anyone who is not question. Any aspirant who doesn't wish to join NDA or have no interest in the armed forces. Who amongst you has a pretty good idea of NDA? इसको पता है NDA क्या है, क्या होता है, क्या है? इसको नहीं है। बात करो तो। नहीं होता 10th का। नहीं होता बता भाई। नहीं होता। नहीं होता 10th में कुछ नहीं होता। Be comfortable there. Where to talk. ये भी responsive. So lecture is absolutely free. No charges will be taken from anyone. So these are just our some introduction we had made for you, so that you think. This is our genuine details. These are very less. This is nothing. This is some recommended. These are recommended theories. This just evaluate when you go for medicals. This is a message being interview. This is SLB Center Bhopal in Alipur Park. Next. So, key points of our discussion. What is NDA? NDA National Defense Academy, one of the most toughest examination बोलते हैं सब, ठीक है? टफ इसलिए क्योंकि लोग पढ़ते नहीं इससे, उनको लगता है बहुत difficult. Personally, I had 2.5 years for that examination. I was not good in studies.
मेरे जिंदगी में 85% सिर्फ 2 बार आए हैं, 12th में और 10th में 70% ऊपर में गया, मैं पढ़ता नहीं। It took me 2.5 years to crack this examination and still crack this examination. Yes, it took me 3 attempts to crack this examination. It was not that I cracked it in the first attempt. पर यही था कि स्टूडेंट वालों को इतना कुछ नहीं है, ठीक है? We'll tell you the basic structure of the examination that comes. National Defence Academy, eventually when you join National Defence Academy, you graduate after 4 years. It is 3+1. 3 years you are in National Defence Academy and 1 year you go to your respective services. Army वाले Indian Military Academy जाते हैं, Navy वाले Naval Academy और Air Force वाले Air Force Academy. So it is a tri-services academy. It is a tri-service academy and the only one in India. Only one academy in India, in entire world, India. ठीक है? That is tri-service. So we'll tell the perks and benefits कि अगर तुम इसको क्लियर करते हो तुम्हें क्या मिलेगा, क्यों तुम्हें करना चाहिए एग्जाम के लिए, ठीक है? क्यों तुम्हारे लिए जानना जरूरी है कि एनडीए तुम्हें क्यों करना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, कब तक तुम इसके लिए एलिजिबल हो, क्या एज लिमिट है तुम्हारे, क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक एज इज रिक्वायर्ड। यू कैन नॉट बी स्टार्ट देते रहो इतनी एज तक तुम खत्म कर दोगे। नंबर ऑफ जेंडर, मेंटल स्टेटस, मेंटल हाउ टू अप्लाई, कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर, पेपर पैटर्न, क्रेडिट ब्रेकिंग एग्जाम बुक्स टू फॉलो वगैरह। What is paper pattern? अब तुम 10th में हो. Your first focus is what? Written exam. It is composed of basically 3 parts in India: written, interview, and medicals. Medicals तो चलो हमारे हाथ में नहीं है, but what is in our hands? Written and SSB. SSB is a 5-day interview process. So it's not just interview. It's मतलब n number of activities: site test, ground aptitude test, your IQ test, your team cohesiveness test. There are n number of tests. For the whole 5 days, you are made to go through various tests. And you go through the day, you are as such eliminated. So you will be sent somewhere in a selection base. जहाँ तुम जाओगे 5 days के लिए. They will judge you how good you are person or how bad you are a person. जैसे निगेश ने बोला कि he was not that good at I statistics. was ठीक not है? good. NDA का एग्जाम क्रैक करना इतना मुश्किल नहीं है. मुश्किल नहीं. It's just 11th and 12th maths and basic science. Science, physics, chemistry, history, The geography. written part is composed of two parts: math and GAT. Math तो आपको mathematics and GAT is your general aptitude test. General aptitude test में क्या होता है? तुम्हारे science, GK and English. तो तुम्हारे baseline में ये होगा math. जाओ तुम Math को खा जाओ अभी से ही. You have time. There is a reason we doing this in mathematics. Yeah, exactly. ठीक है? Yeah. We'll tell you more about this. We'll tell you about the cutoffs and previous analysis. कि तुम्हें कितने marks लाना है इस exam को clear करने के लिए, ठीक है? SSB tips will tell you how to prepare for SSB, medical and all. Merit list and then we'll have Q&A. जो भी आपकी queries होंगी, we'll try to solve them. So this, anyone knows who is this? He was former CDS. He is now martyred. This is what you become when you play India. This is, you know, इसको पता है कौन है? General MM Narayan. Former CS, Chief of Army Chief of Army Staff, Staff. Head of Army of India. He is now not now he's retired, but he was previous. Who knows him? He was a पता है मूवी देखी है वो एक मूवी आई थी मेजर सिंह मेजर. He was an Indian cadet who saved lives of these people in Taj attack in 2008 by terrorists. So he was an NSG and he saved the lives, giving his life. This is former Air Chief Marshal Rakesh Kumar Bhatoria. He is also an Indian cadet. This is the campus of India. मतलब the campus of India is 7,000 acres. 7,000 acres. आइडिया कितनी इसकी होता है? तो उसका मेन बिल्डिंग है वैसे सुडान ब्लॉक. यहाँ पढ़ते हैं हम FL की मैथ्स की इंग्लिश क्लासेस. This is your science block. This is your library. And there are your students and everything. There 7,000 का है. बहुत है. कहीं भी जंगल में छोड़ देते हैं. भी गिरा देते हैं. ठीक है? तो इसका नाम सुडान ब्लॉक क्यों है? Because it was funded by Sudan government. जब ये बना था 1945 में. 45 में The government of Sudan funded this. इसलिए उसका नाम सुडान हो गया. तो ये basics are main से building है NDA. What is NDA? National Defence Academy, as you said, Tri-Services Academy, only one in world that provides tri-service training, and it is the best. Best क्यों है? वो क्या perks and benefits मिलते हैं? First exam after 12th तुम जो दे सकते हो eligibility criteria, that is NDA. When you are appearing 12th, जब तुम्हारा नवंबर का महीना होता है 12th का, you can apply for this examination. And if you crack it, eventually join academy. 3 साल की तुम डिग्री करोगे BSc,
बीटेक जो भी तुम्हारी सर्विस है उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद तुम चौथी साल अपनी इंडियन एकेडमी में, और कुछ नहीं, उसके बाद तुम विल बी अ लेफ्टिनेंट, विल बी अ Rank officer, lieutenant in army, navy, and around 22 you will earn around 1.5 lakhs. If you clear in that after 12. If anyone knows what this Paramveer Chakras, Ashok Chakras, पता है इसका? अगर तुम्हें पता होगा तो जो लोग आर सोल्जर्स, ऑफिसर्स जो मार्टर्ड हो जाते हैं या ब्रेव एक्ट के लिए उनको मिलता है, जैसे 1999 कारगिल वॉर हुई थी, उनमें काफी पीवीसी जमीन से मिलते हैं. सो ये लोग इंडिया से मिलते हैं. It's right now India 3 Paramveer Chakras, पर Ashok Chakras सब बताने थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं. ये भी ऑलरेडी टोल्ड इट होगा मेरे से कैंपस से हम लोग You will be there total 10 years old, 3 years. Okay, let's say there was 6 terms. आगे का. हम term break पे आए हैं. We had 5 months of training and 1 month of term break. That is composed of 1 term. Now I'm in my 5th term. We have like we have completed 5th term session, last term is there in India. तो हमारा 1 साल बचा है. एक साल. ये हम डिस्कवर ये जनरल वर्किंग के लिए It's like school uniform. School uniform, exactly. Like you were. Like you get, and there are n number of uniforms. एक नहीं होती. There are like 10 uniforms that you have to change one after another. तो ये squadrons है basically. So there are like houses होते हैं ना school में. School में तो गांधी हाउस. तो वहाँ अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा टिल रोमियो. There are 18 squadrons. एक squadron की strength होती है हमारी 120 राउंड. इसमें 6 टर्म्स डिवाइड होते हैं. फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म. इससे हायरार्की. अब तुम फौज में आ रहे हो, you have to get into this hierarchy, ये सिस्टम. तुमको पता है तुम्हारा जो ऊपर वाला है वो जो बोलेगा वो करना पड़ेगा. That is what they instill you in National Defense Academy also. Because तुम अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में घुसना चाहते हो जिसकी फाउंडेशन ये है डिसिप्लिन एंड हायरार्की. Like हमारे पास होता है कि 10th वाले इंजीनियरिंग करते हैं 12th वाले. But in NDA, suppose I'm in 10th and he's in 12th. So he says anything, I have to do. He says go jump from there. He says anything, he bullshits me, I will listen. That is seniority. That is not fear. That is respect for us. That is respectful system. That is which you guys are missing. तुम्हें 10 से 11 में पता चलता है 11 वाले 10 वालों को क्या नहीं करते. That's we want you to tell. इस seniority juniority बहुत बड़ी चीज़ है for you. तुम्हें नहीं पता और तुम्हारी गलती नहीं है. तुमने नहीं देखा. But अगर तुम 10th में हो और अगर तुम्हारा कोई junior है 8 9 में तो तुम्हारी responsibility बनती है उसके हेल्प करो, studies में हेल्प करो, कोई emotional problems की हेल्प करो. ये नहीं अच्छा ये उसका हो गया ऐसा हो गया ऐसा नहीं. अगर तुम 12th में हो तो तुम्हारी responsibility you are senior most school. You're 20 or 10th. Half of the school is under you. अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो वो तुम्हारा जूनियर है. ठीक है, जूनियर मतलब बहुत छोटा भाई है, छोटी भाई छोटी बहन, उसकी हेल्प करो, पढ़ाई में हेल्प करो. ऐसा नहीं वहाँ पे जा रहे वो 10वीं में मैं 11वीं में 12वीं में हम निकल रहे हैं लेकिन ऐसे नहीं. और भी सीनियरिटी बहुत बड़ी बात है. ये पासिंग आउट पीरियड की थोड़ी फोटोज है कन्वर्सेशन टाइम सेशन की. जोश पुशअप्स एंडी जोश पे चलता है. You've seen the videos how the Josh. Hi sir. हाय सर. Permission पागल जाते हैं स्क्वाडिंग के पीछे. We'll show some videos sometimes. But you can become comment. टाइम मिला तो दिखाई वीडियोस. हाँ यूपीएससी एग्जामिनेशन दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू कि एवरेज ऑफ कितना इन इंट्रोडक्शन की अराउंड 8 to 10 lakhs now including girls also. Yeah, हम 148 कोर्स है तो फर्स्ट कोर्स दैट इज हैविंग फीमेल बैच also. तो वैकेंसीज भी बढ़ती है तो गर्ल्स आल्सो हैव 32 वैकेंसीज. फर्स्ट इट वाज 18 मेरे कोर्स में 18 लगते हैं but now it is also changing for girls. ठीक है, तो you also will have opportunity now. You should try this. Everyone should try this. So around 8 lakh में से around 10,000 clear written and from 10,000 only 400 around 400 to 450 make it to the academy after SSB. So you will select with around 600. Like 10,000 with 600. So you get 600 with the top 450. To make it more. Top 1. So it is a competition हर जगह. Yeah. But you don't need to question yourself कि हाँ मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ ऐसे. ये नहीं है इसमें कि हाँ मैं अच्छे मार्क्स नहीं आते तो मैं नहीं कर पाऊँगा. This is not India. This is what India is. तुम होनी चाहिए average in everything. ठीक है? At least this is a minimum requirement. Like you should not be like too much. ये नहीं चाहिए कि हमको हाँ कि टॉपर है तो आराम से कर लिया. और उसका पेड ऐसे निकला. So we don't mean anywhere like कौन था होने वाले वो कौन था सपाटे बनने वाला. आज हमारे के सपाटे कोई था ना वो इन्फ्लुएंसर उनके तो हाँ कि हम हमारे के सपाटे मारते रहे लेकिन पढ़ने में कर सकते नाइट ज़्यादा कम से कम 80% लाइक वी नीड अ पर्सन जो मोल्ड कर ले अपना
You don't want any person की बस में तो ऐसे ही होगा ऐसे. You want a person जो mold हो गए फौज की जगह. जैसे when I went, so I was 95 kgs and right now I'm 65 kgs. So he also will like मुझसे agree करेगा कि जब हम academy गए तो हम बहुत different थे. तब हम आ गए तो हम बहुत ज़्यादा ही different हो गए. इससे बात करने में हो जाता है different. बात करने का तरीका सब कुछ तरीका खाने का तरीका बात ये करने का तरीका. drill that into you, okay? ऐसा होता है. जिंदगी से कोई शिकायत नहीं. हमें वो होता ना कि अच्छा हम 6 घंटे सोने को मिला, हमें तो टेस्ट मार्क्स से आ गए, हमें खाना अच्छा नहीं मिल रहा, हमारी लड़ाई हो रही है. ये बात नहीं है. बातें तो ऐसे होती हैं. These are also true. सेकेंडरी से भी बहुत पीछे. तो अगर तुम्हारे बेसिक इंडियन क्या होता है कि हाँ इंडिया में इसमें जाते हैं एक में तुमको ये करियर अपॉर्चुनिटी है आगे जाके तुम 4 साल बाद ही यूके तो पे तो होती है उसके अलावा एन नंबर ऑफ सर्विसेज भी होते हैं पर्सन हाँ हाँ ये ट्रेनिंग यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग पे नहीं होता बस अपना खर्चा जो तुम्हारा खाने पीने का होता है वहाँ पर एक्स्ट्रा जो तुम्हें पॉकेट मनी जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें घर से आगे कुछ नहीं चाहिए. नो एक्स्ट्रा पेमेंट घर वालों से कभी कोई पैसे नहीं घर वाले बोलते भी नहीं कुछ. घर वाले भी इंडिपेंडेंट है कि हाँ चल घर वाले गार्डनेस में तो ठीक है. फ्री एजुकेशन, कॉलेज में बीटेक, फ्री बीटेक, free hostel, food, accommodation, and this is when you go to India, you will get a separate cabin. Cabin मतलब room. You go to India, you will get everything, 2 cupboards, your study table, your bed, your uniforms. you'll do everything. You'll do PT, physical training, you'll do swimming, you'll do horse riding, you'll study. Don't think that you won't study. You study foreign languages. मैं Chinese पढ़ रहा हूँ भाई पढ़ती है. कि हाँ, we have to take foreign This languages. is what they expect from us. This is what they expect from us. Yeah. Yeah, you get to study Chinese. You play sports. Sports का बहुत अलग ही माहौल होता है. Sports very simple. Very Sports, simple. swimming, PT, academy. वही आती है ना स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट उसकी जैसे हाउस का नहीं होता तुम्हारे खो-खो वाला करते हो. अशोका गांधी नेहरू टैगोर वगैरह पागल आते ना तो देयर 18 स्टूडेंट्स अल्फा ब्रावो जान निकाल देते हैं. खून जान निकाल देते हैं. कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड एवरीवन हैज टू प्ले स्पोर्ट इट्स नॉट लाइक मैं नहीं खेलूंगा सब खिलाएंगे सब खेलेंगे चाहे जैसे खेले So this power and next level officers who join armed forces are given extreme power and responsibility. Extreme power मतलब if you are going in front, तुम border पे जा रहे हो, lead कर रहे हो, तो power का मतलब ये है. इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसको भी जाओ गोली मार दो, ये नहीं होता. You will be given responsibility. Like I am joining Navy, so entire ship I have to command. Ship का कैसे रन करेगी, कैसे चलानी है, that is responsibility. बहुत बड़ी responsibility होती है. इंडिया का बेसिक को क्या होता है इट इज अ क्रेडल ऑफ लीडरशिप दे ट्रेन यू टू बिकम लीडर्स so that you can lead everyone in war ठीक है this is the basic highlight of India कि they are training you to lead your men in war and you should know how to lead your juniors ठीक है how to take care of them that is what is meant by power Last one, don't use phones. Everyone switch off phones. ठीक है और कैंटीन फैसिलिटीज के बारे में बताइए. कैंटीन फैसिलिटी सुनी होगी तुमने हाँ, CSD कैंटीन CSD कार्ड होता है कैंटीन कार्ड होता है सस्ते में तुम्हें सामान मिलेगा. कुछ भी लेना हो, गाड़ी, फ्रिज, कुछ भी राशन, तुम्हारी फैमिलीज के लिए काफी सपोर्टिव रहता है. लाइक महंगाई बहुत बढ़ती है, कैंटीन जाके तुम्हें सपोर्ट देती है सरकार. मेडिकल फैसिलिटीज फ्री मेडिकल. मेडिकल फैसिलिटी बड़े से बड़े तुम्हें हार्ट भी चाहिए तो वैसे बहुत आगे रहती है, किसी का पड़ के डाल देगा तुम्हारे फैमिली के लिए. The accommodation I told this when you commission as officer you will be given a house to live and salary and allowances generally salary is now 5 figures sum. Like when you start around 1 lakh you start करोगे and जैसे तुम grow करोगे so it will go further. like if you are in college तुम 3 साल की डिग्री करोगे उसके बाद तुमको फिर प्लेसमेंट लेना पड़ता है it is not guaranteed ठीक है तुम कॉलेज चले गए फिर you have to fight it एक बार तुम इसमें घुस गए तो बस घुस गए तो कंफर्म है सब कुछ placement 100% प्लेसमेंट 100% है ठीक है and it is like if you go to college you जितना जाते हैं लोकल यूनिवर्सिटी में लोग यहाँ से तो वहाँ पे अगर तुम 60,000 भी कमा रहे हो महीना वो जो कि बहुत कम कमाते हैं उसमें से 40,000 तुम्हारा एक्सपेंसेस होता है खाना पीना रहना and you get everything for free इधर तुम्हें 1 लाख मिल रहा है तो 1 लाख तुम्हें खर्च नहीं करेगा. और लास्ट ईयर की ट्रेनिंग में जब तुम अपनी रिस्पेक्टिव एकेडमी में जाते हो इंडियन मिलिट्री एकेडमी नेवी एकेडमी एंड एयर एकेडमी you get half of the stipend around 56,000 मतलब तुम you'll be around 21 and 22 in age and you'll be earning 56,000 you will be earning good amount और एक साल बाद ही तुम will be earning in lakhs officers and ranks will be there on your shoulders. and ranks will be there shoulders गाड़ी की में घूमोगे अलग से तो World class education facilities unbeatable. Professors from IIT comes to teach us and they are very knowledgeable. और वो ऐसा नहीं होता कि वो पढ़ाते हैं terms वो बहुत knowledgeable. Education is very good. Next.
sports we mentioned, ठीक है? All sports are there. All sports are there, and everyone has to play all sports. ऐसा नहीं है. Term wise होता है, जैसे इस term हमारा था hockey and basketball, अब next term हमारा होगा football और squash and volleyball. Same. ठीक है? Adventure activities हम पैरा कुछ हाँ, होते हैं. there are clubs, different clubs, scuba diving, Paragliding. sailing, paragliding. We're meant to do मतलब Free में सब. free में सब, horse Plus riding, तुम्हें horse riding and polo. हाँ कर सकते. Horse riding is there. They teach you there. Water polo पता किसी को होती है. वो भी सिखाते हैं, सब सिखाते हैं. सब होता है. और photo competition, aquatics, 100 meter race. तो जब तुम वहाँ से बाहर आए तो तुम ऐसा होता है कि यार तो आते सब कुछ ठीक है. सब होता है. You will come out as confident. हाँ. Yeah, that is the main point. You should be confident. If you want to lead ना, अगर तुम अपने सामने वाले को, अगर तुम खुद डरे हुए हो, तुम सामने वाले को कैसे करोगे? हाँ. समझ रहे हो? ये बात है. पार्टीज तो बहुत ज्यादा ही होती है. पार्टी बहुत ज़्यादा होती है भाई. अब ऐसे नहीं होती कि एक तंबू काट दिया और एक वेरी नहीं रोज टाइप पार्टी. क्लासिक पार्टीज. अब वो रोज नहीं होती है. वो कमीशन उनके पास ज़्यादा होती है. अभी तो नहीं होती. ट्रेनिंग ट्रेनिंग फेज में लाइक यू विल एंजॉय लाइफ. एंजॉय. लाइफ टाइम पेंशन. व्हीकल फैसिलिटीज हाँ, मेंशन. पार्टीज इन लाइक आई मेंशन. कंसेशन इन रेलवे से नहीं. हाँ ट्रैवल तुम्हें मिल जाता है. आना जाना तुम्हें कहीं इंडिया में कहीं से कहीं जाना तुम्हें थोड़ा कंसेशन मिल जाएगा फ्लाइट्स में रेलवे में. हाँ उसके बाद ये काफी स्किल डिमांड कर सकते हैं. जैसे ये होता है You retire after commission. 25-30 years सर्विस का. उसके बाद then you go to private sector anywhere. अगर तुम कर्नल वगैरह रैंक पे हो तब तुमको सीधे किसी भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में सीधे टॉप की वो मिलती है. मैनेजर की पोस्ट. तो उसके बाद भी सिक्योर है तुम्हारा जब तुम रिटायर हो जाते हो. पेंशन अलग से आएगी. अलग से आएगी और और private sector में 20 लेके lakhs अगर आराम से तुम chair में. ये बिल्कुल. So it is very good. Like you will enjoy it. मेन चीज रिस्पेक्ट. ये तो can't explain. यानी तुम किसी और प्रोफेशन मतलब ऐसा होता है you can't explain. मतलब तुम obviously तुम कोई यूनिफॉर्म अफसर को सामने देखोगे तुम you won't take him lightly. ठीक है. Won't take it. और तुमको कहीं भी जैसे हम तो कैडेट है हम अभी भी बताते हैं ना कहीं अगर कुछ ऐसे हाँ NDS है. जैसे मैं NDS है एक्सीडेंट हुआ था मेरे फ्रेंड्स के साथ गया था. मैं स्कूटी पे तो we didn't have license helmets. So उन्होंने पकड़ लिया. हमें बड़ी प्रैक्टिस है. I'm from India. We are very sorry. We will not repeat. हम पूछो NDS से हम जाओ. और मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ. मैं आईडी कार्ड दिखाते हैं जाइन से. बहुत रिस्पेक्ट देते हैं. बहुत रिस्पेक्ट देते हैं. क्लब्स में जाते हैं हम बॉम्बर्स खड़े होते हैं. We are from army को. बहुत रिस्पेक्ट. सिविल लाइन में बहुत रिस्पेक्ट हो गया. घर पे बहुत रिस्पेक्ट हो गया. ये सुनिए रिश्तेदारों में बहुत रिस्पेक्ट हो गया. ये सुनने में मजा आता है. रिस्पेक्ट नहीं थी यार. हाँ now eligibility criteria क्या है June 10th में eligibility is from 16 and a half years to 19 and a half years plus your plus 2 should be हाँ this from if हाँ अगर तुम आर्मी में जाना चाहते हो तो तुम्हारा मैथ्स होना चाहिए प्लस 2 में. ठीक है. अगर तुम नेवी एयर फोर्स में जाना चाहते हो तो फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए. So accordingly you select your subjects. अब तुम लोगे अगले टर्म. Like if you want to go to army, say army है मेरी लाइफ. बस कॉमर्स में मैथ्स चलेगा, PCM चलेगा. PCM BP चलेगा. ठीक है. तुम्हें मैथ्स होना चाहिए. और अगर तुम नेवी एयर फोर्स में जाना चाहते हो तो PCM MNP होना चाहिए. PCM होना चाहिए. Further this you should be 12th pass or 12th failing to give ND examination and you should be first division pass. ऐसा नहीं चाहिए 90% चाहिए 10th में 75% बहुत है. ठीक है. अब ऐसा नहीं कि तुम लाओगे नहीं 12th में 75 लाओगे. अच्छे मार्क्स लाना. ठीक है. This how to apply में how to apply also next this is your basic एडमिट कार्ड आता है. admit card जो पेपर का आता है. एंड जो पेपर का एडमिट होता है एनडी कैसे पेपर written examination now SSB interview written का तो बता दूं तुमको क्या है बेसिक है ना. what is SSB that 5 days interview process will they check your basically personality. ठीक है. ये तुम्हारा उसका टेस्ट नहीं है तुम्हारे दिमाग का टेस्ट हो चुका है कि कितना आता है इसको कितना इंटेलिजेंट है. ठीक है. मैथ आती है फिजिक्स आती है साइंस आती है. ठीक है. तो तुमने रिटन क्लियर कर दिया तो ये प्रूव योर मेटल कि हाँ मेरे को इतना आता है इंटेलिजेंस में. पर नाउ हाउ यू आर एज अ पर्सन. ठीक है. इसके लिए तुम ये नहीं है कि तुम कैसे पढ़ के कुछ कर सकते हो. ठीक है. इट इज यू हाउ यू आर. नाउ यू गाइस आर इन 10th. ठीक है. तो आई एडवाइस कि तुम थोड़ा अपने को इंप्रूव करोगे. हाँ एज अ पर्सन आई एम सेइंग. ठीक है. थोड़ी जगह हाँ थोड़ी प्ले स्पोर्ट प्ले एटलीस्ट वन स्पोर्ट. ठीक है. इट क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन कि ठीक है नहीं खेलता है भाई. बहुत चाहिए होते हैं भाई ऐसे वाले कि प्ले एटलीस्ट वन स्पोर्ट. ठीक है. मेक गुड फ्रेंड्स. हैंग आउट इन गुड सर्कल्स. फोन में मजे करो भाई. ठीक है. मजे करने कोई नहीं बोलता. मजे भी करने मजे करो पर जब करना है ना
पढ़ाई करो पढ़ाई भी बहुत जरूरी है पढ़ाई। Like we have come here to specially tell you that 10th में तुम स्पेशली 10th का नहीं लेते हम नहीं लेने वाले थे, but we thought कि 10th को ज़्यादा गाइडेंस चाहिए। You are very basic right now, you are like उठोगे तुम अभी बस। और अगर तुम इस स्टेज पे अभी यहाँ पर आ रहे हो, हमें तो कुछ पता नहीं था भाई, कुछ नहीं पता। 10th में तो ऐसा पता था कि क्या है बोर्ड्स के बाद क्या है ना। बोर्ड्स You guys have come here, you are already a step ahead of us, 2 steps ahead of us. जाओगे। तुम हमारे से भी अभी आगे, अगर तुम इस माइंडसेट को रखते हो आगे भी, ठीक है। अभी तो तुम मोटिवेटेड रहोगे, सुन रहे हो अभी, फिर थोड़ी देर बाद 2 दिन बाद भूल जाओगे फिर उसी रूटीन में, ठीक है। फिर ट्राई टू एटलीस्ट क्या जो भी हम बोल रहे हैं, retain at least 10 to 20%, 30%, and it will help you, trust me. Then after clearing your 5 interview, जैसे मैंने बोला मैं 3rd attempt में क्लियर किया एनडीए, तो मेरी रिटर्न हर बार हो जाता था, पर मैं एसएसबी में रह जाता था। SSB is the toughest interview in India. हाँ, Even UPSC IAS का भी इतना टफ नहीं है SSB फर्स्ट इंटरव्यू। So it is लगता है बोलने में कि टफ है, नहीं तुम कोशिश तो करो। It took मुझको 3 अटेम्प्ट लगे, मेरे को 2 अटेम्प्ट लगे SSC के। पहली 2 बार मैं कॉन्फ्रेंस आउट था, मतलब 5 दिन का होता है ना, तो पहली 2 बार मैं 5वें दिन बाहर हो जाता। मतलब आई टेल यू स्ट्रेंथ ऑफ इन एयर फोर्स अराउंड कितने होते हैं स्क्रीनिंग के लिए? 200 आते हैं, स्क्रीनिंग होते हैं अराउंड 30 के बीच। ये होते हैं पहले दिन स्क्रीनिंग, मतलब ऐसा होता है 5 दिन में पहले दिन टेस्ट हो गए, मैं 200 बच्चे आए, जैसे यहाँ पे तुम सब आए हो, ठीक है। अब मैं तुम्हारा एग्जाम ले रहा हूँ, तो मैं सबका एग्जाम नहीं लूंगा पूरा 5 दिन। मैं लूंगा अच्छा इसमें से बहुत बंदा ठीक लग रहा है, बंदा ठीक लग रहा है, तुम 40 हो तो मेरे से 20 निकाल। एग्जाम ऐसा नहीं होगा कोई रिटर्न वाला, क्या होगा तुम पर्सनालिटी टेस्ट होंगे, तुम्हारा साइकोलॉजी टेस्ट होगा, वो चलो बात की बात है, तुम्हें पता लगेगा। साइकोलॉजी टेस्ट होता है, फिर तुमको ग्रुप डिस्कशन में बिठाते हैं, 10 बोल पा रहे हो कि नहीं कि बोल पाए, फिर तुमको जनरल टॉपिक दिए कोई लाइक तुम ग्लोबल इशू जो भी चल रहा है जैसे, कुछ बोल जाएगा तुम लाइक स्कूल में होता है ना वो एक्सटेम्पोर, हाँ एग्जैक्टली ऐसे समझ लो, ठीक है। एक्सटेम्पोर टेस्ट। सो 40 ऑफ यू कम है, मेरे को सारे सबका टेस्ट लेना, आई टेक 20 बेस्ट ऑफ यू। 20 में अपने पास उनको 5 दिन के लिए, बाकी को उसी दिन वापस कर, यू आर नॉट गुड। 20 मेरे पास आ गए, 20 का मैंने टेस्ट दिया 5 दिन, 20 पर्सनालिटी है मेरे पास। 20 पर्सनालिटीज में को सिर्फ 2 ठीक लग गए, फर्स्ट फिल्म 2 को सिलेक्ट करूंगा, बाकी को बकर में एसएसबी। हाँ ये मत देखना, मतलब जिंदगी में एक एसएसबी जरूर देना। अभी इट विल, अगर तुम किसी भी फील्ड में जाते हो, मैं ये नहीं बोल रही कि तुम आगे भी ज्वाइन करो, इट विल हेल्प यू, यू लर्न अ लॉट, ट्रस्ट मी। ये जो एक्सपीरियंस मिलता है ना, ये कहीं नहीं मिलेगा तुमको, एसएसबी का मिलता है। कोई एग्जाम दे नहीं सकता है, कोई एग्जाम दे नहीं सकता एक्सपीरियंस, तुम्हें पता लगेगा कि अच्छा इसके बाहर भी ये चीजें होती है, ठीक है। दैट इज व्हाई आई टेल यू कि इट इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। Try to be confident, try to be confident, try to be, है ना, मतलब राइट, आस्क राइट क्वेश्चंस, ठीक है। ठीक है, फन वगैरह चलता है अपना साइड में, पर जब सीरियस बात होती है तब सीरियस बात सीरियस बात। हम भी फन से बात कर रहे हैं। मेडिकल एग्जाम गॉड के ऊपर है, अगर किसी को खुदा ना कुछ ज्यादा ही बीमारी है तो उसको ट्रीट कराओ। लाइक यू शुड बी फिट पर्सन, ऐसा नहीं होना चाहिए यू नॉट फिट फॉर। आई सेट के लिए काफी होता है, सबने I said guys cannot go into Navy and 70% they can only go into Army. आई सेट वाले नेवी एयर फोर्स में अलाउड नहीं है, यू वांट 6/6 फॉर नेवी एयर फोर्स। भाई फोन कम चलाओ थोड़ा। मेरिट लिस्ट इज नेक्स्ट, यू नीड टू गुड numbers, good rank to go to NDA, and after this is Join me at the center. training next week. Exam only question. So I'll tell you basic routine of 1 day of NDA. ये एवरेज 1 डे है एक कैडेट का एनडी के अंदर। वो सुबह उठेगा 5:30 बजे, बहुत जब वो सीनियर है, हाँ जब वो सीनियर है, चलो जूनियर टर्म से तभी उठा देते हैं। 5:30 बजे उठेगा, you go for your outdoor training, that may be drill, your PT or your swimming or your horse riding, ठीक है। फिर around 8:30 you come back, you freshen up, change, go for breakfast, then you go for academics classes. Academics from 9:30 to 1:30, इतना academics चलता है। Academics उतना ही है जितना तुम करते हो, ठीक है। Academics is important. very important. You will not just pursue your degree. मैं BSc chemistry कर रहा हूँ, तो मैं BSc chemistry के साथ foreign language पढ़ रहा हूँ और cross service subjects pertain to army, ठीक है। और cross stream subjects में फिर और भी आता है, जैसे मैं BSc वाला हूँ पर वो economics भी पढ़ाएगा एक टर्म, फिर एक टर्म मेरे को किसी और स्ट्रीम के ऊपर पढ़नी पड़ेगी। तो ये मेक यू क्या बोलते हैं कि सब कुछ कराते हैं, ओवरऑल कराते हैं। फिर 1:30 तक हो गया तुम्हारा academics, then you go for lunch. After you come from lunch, then there are SCON activities, which 6 termers organize. 6 termers are like at the helm of academy. 12th of school. हाँ 12th, बारहवीं में ठीक है। सीनियर मोस्ट तो NDA is run by cadets only. It is not that कि हमेशा उनको वो करने कोई साहब रहेगा या टीचर रहेगा, ऑफिसर रहेगा, वो तो रहती है, पर they don't run the academy. Academy is run by cadets only. 6 termers plan out करेंगे सब कुछ क्या क्या कैसे करना है। 5 termers will make sure कि हाँ यूनिवर्सिटी पार्टी कर रही है कि नहीं,
four termers will execute the orders. अगर वन लंच के बाद बोला कि पीटी होगी तो पीटी होगी, अगर स्पोर्ट्स होगा तो स्पोर्ट्स होगा, ठीक है. अगर क्रॉस कंट्री प्रैक्टिस होगी तो क्रॉस कंट्री प्रैक्टिस. जैसे कि तुम्हें स्कूल में उसमें क्या होता है, सब कुछ टीचर्स करते हैं ना, तुम्हें बताएंगे ये करना है. अब तुम सोचो वही चीज 12th वाले कर रहे हैं और 10th वाले उनकी हेल्प कर रहे हैं और 9th 10th वाले सब ऑर्डर मार रहे हैं. टीचर्स का कहीं रूल नहीं है, टीचर्स का बस पढ़ाना काम है और देखना काम करेंगे. 12th वाले सब काम कर रहे हैं, उसकी बॉन्डिंग आएगी लोग में, यार मेरा स्कूल है. 12th वाले करेंगे मेरे स्कूल के लिए करेंगे. 10th वाले सीरियसली रिस्पेक्ट करेंगे कि मुझे सर ने बोला तो मैं करूंगा, भैया ने बोला तो करूंगा. ये है after your sports is your study period, suppose 2 घंटे हो गया, उसके बाद order calling, then order calling में you passed on orders, फिर उसके बाद dinner, then after dinner again fun activities. अब there are n number of activities, PT, swimming, sports वगैरह, तो प्लान आउट करना पड़ता है कितने टाइम पे गए, अब पढ़ाई करनी है, कब पढ़ाई करना है, क्या करना है. तो रात को तुम या फिर उनमें से यूज करोगे क्रॉस कंट्री या पीटी से. then around 10:30 go to sleep. That's all for seniors. और सीरियस मतलब चल समझ लो. मतलब you need to have a tough mindset to be there. It is not easy. तुमको अभी सुन रहे हो कि हाँ अच्छा है, मैं घुस जाऊंगा तो ऑफिसर बन जाऊंगा, ठीक है. That training, that work, it is tough. It is tough, but it is worth it. It is worth It is hectic, but it is worth it. हाँ, तुम बनाएंगे वो. And then there are camps. Camps are mainly second, fourth and sixth term में camps होते हैं तुम्हारे, which give you outdoor exposure proper. जो होता है ना तुमको कॉम्बैक्स में दिखते हैं बना के जंगलों में छोड़ दिए and you will survive. and you survive. मैप रीडिंग सिखाएगी तुमको. You'll be given maps and compass. No GPS. ऐसे कुछ डिजिटल होगी. And they'll give you checkpoints. तो मैप रीडिंग भी सिखाता हूँ वहाँ पे कि तुमको देखना है कॉन्टूर कैसे रीड करना है, चेक पॉइंट टू चेक पॉइंट हिट करना है सारा, ठीक है. उसके बाद this is something I tell you about this paper pattern. Like when you go to give exam, दो पेपर होंगे, ठीक है. First is mathematics, 120 questions, 2.5 hours मिलेंगे, 300 मार्क्स होते हैं. For this, out of 300 you require at least 100 marks, ठीक है, to clear it. और अगर तुम्हें क्लियर करना है इंडिया अच्छे रैंक चाहिए तो अराउंड 150 तक आनी चाहिए. पेपर 2 GAT 150 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 600 मार्क्स पेपर होता है. अराउंड 300 मार्क्स की बनानी. There is negative marking also. नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है. Negative marking. दो पेपर होंगे, टोटल एग्जाम 5 घंटे का होगा. पहला एग्जाम 2.5 घंटे होगा, फिर 1.5 घंटे की ब्रेक होगी, फिर अगला एग्जाम शुरू होगा, 2.5 घंटे होगा, ठीक है. 900 मार्क्स का एग्जाम हो गया. 600 plus 300 900. कट ऑफ विल बी अराउंड 330 से लेकर 350. तुमको लग रहा होगा कि हाँ बड़ी कम है, 900 टोटल मार्क्स है, कि बस इतना ही है. ऑल इंडिया रैंक बन के आते हैं 600 रिटन में. मेरे थे अराउंड 430 रिटन में, तो मैंने क्लियर किया. ऑल इंडिया रैंक बन के आते हैं 600. सो यू हैव टू स्टडी. इतना नहीं बोल सकते. लेकिन यहाँ लिखा है 656 ऑल इंडिया वो रैंक. तुम इवेंचुअली जब आगे जाओगे तुम्हें पता लगेगा कि कैसे मैंने कुछ आंसर करने की कोशिश, कैसे क्या करना है. वो तुमने बता दिया. नेगेटिव मार्किंग हुई जो बोला था. इस मैथमेटिक्स से तुम्हें बताया गया कि स्ट्रेटजी का डायरेक्शन में 75 कुछ you guys are in think ना तुम्हारे कुछ काम नहीं. कुछ नहीं काम है इसका. 11 12 की जो बेसिक पढ़ाई करते हो ना अपनी मैथ की, बस कहाँ से हो रहा हो? तुमको ही नहीं बोले कि हाँ ये बुक पकड़ लो, ये तो अगले साल अगले ये अभी बुक पकड़ लो और अभी से शुरू हो जाओ. नहीं, अभी तुम पढ़ाई करो अपने 10th 11th. बस जो अपनी पढ़ाई कर रहे हो ना उसमें फोकस करो. ऐसा मत करो कि यार पढ़ रहे हैं हो जाएगी पढ़ाई. नहीं, बहुत जरूरी है पढ़ाई. जब तुम पता चलता है कि फोन में लगे रहते हैं आजकल के पैड्स और बस फिर उधर करते रहते हैं, वो सब नहीं करनी चाहिए. हम भी ऐसे ही थे. मैं नहीं बोल रहा मैं बहुत स्टड था, बहुत पढ़ता था. मैं भी हर किसी यहाँ पे कहीं कभी से मारते हो. अब तो नहीं मारते. तब तो सर की शादी भी नहीं हुई थी हमारे साथ. तो भाई यहाँ तो हमने बहुत खाए हैं सर से, तो तभी बने आज. पर खाने में पढ़ना तो चाहिए, पढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा ही पढ़ना चाहिए जो तुम्हारी अभी एज है. तो इस पर तुम्हारा इतना है नहीं, उसमें थोड़ा पैटर्न बता दो. नेक्स्ट ये चैप्टर्स वगैरह भी ये विल चेंज. तुम्हारे एग्जाम में अपनी सीबीएसई पढ़ाई करते हैं. नेक्स्ट पेपर 2 भी ये इंग्लिश जीके में आता है. पेपर 2 में क्या आता है 600 मार्क्स में. इंग्लिश, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, ये सब आता है. 7-8 चीजें आती हैं. थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ता है. यहाँ कर लिखा. अभी दिस इज आल्सो 11 12 ये है ना सारा इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो 11 12 तो हो जाएगा. तुमने पढ़ रखा है ये सब. 10th तक तुमने सब ये पढ़ रखा है. तुम तो पढ़ रहे होंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह, पॉलिटी. वही आएगा तुम्हें, तो तुम्हें याद रखना है. नेक्स्ट थोड़ा पेपर पैटर्न है. इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स के कितने आते हैं, ज्योग्राफी के कितने आते हैं,
मैथ्स के तो पता ही है मैं मिट गया। नेक्स्ट एसएसबी एसएसबी के हाँ जो हमने बेसिक टेस्ट बताया था 5 दिन में। फर्स्ट डे यू हैव योर स्क्रीनिंग टेस्ट, इसमें फिल्टर आउट होते हैं, मतलब मैक्सिमम जनता दे ओनली रिटेन 40%, 100% अगर बच्चा है तो सिर्फ 40% रखेगा, 30-40% रखेगा। साइकोलॉजी टेस्ट ये सेकंड डे होता है, 3 घंटे का टेस्ट होता है साइकोलॉजी। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ डे जीडीओ वन डे ग्राउंड टेस्ट होते हैं। ग्राउंड टेस्ट मतलब ये नहीं फिजिकल मतलब ऑब्स्टिकल्स वगैरह भी होते हैं। ऑब्स्टिकल्स होते हैं। मेन इसमें क्या होता है तुम्हारा योर ग्रुप डायनामिक्स, योर ग्रुप डिस्कशन, योर वे ऑफ स्पीकिंग, मतलब ग्रुप में कैसे हो एक इंसान, लाइक तुम ऐसे इंसान हो जो ग्रुप को तोड़ देता है, तो तुम ऐसे इंसान हो जो ग्रुप को जोड़ता है, सबको एक साथ रखता है। तुम ऐसे इंसान तो नहीं हो नहीं भाई इसमें तो बैट मेरा है तो मैं ही करूंगा, ऐसे नहीं होता। ऐसा होता है कि हाँ भाई हम साथ मिलकर खेलेंगे, ऐसे चेक करते हैं, ऐसे पॉलिटिक्स चेक करते हैं। दिस G2 is 2 दिन का होता है, थर्ड होता है, फिफ्थ डे का कॉन्फ्रेंस। इसमें तुमको रिजल्ट होता है, रिजल्ट आ जाता है, यू आर सिलेक्टेड और नॉट, यू आर सिलेक्टेड और बस। और कुछ दे कॉल आउट द चेस्ट नंबर्स। अगर 30 हमारे उसमें थे 30 चेस्ट नंबर्स, मतलब 30th में था 1 to 30, तो चेस्ट नंबर 2 4 6 8 21 30 बाकी वापस इसके मतलब हो जाता है मुश्किल। मतलब एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग रिटर्न, रिगार्डिंग एकेडमी, रिगार्डिंग कि क्या करना चाहिए आगे, कुछ क्या किसी चीज में भी डाउट है कि मैं ऐसा करता हूँ क्या ये ठीक है क्या। कैट्स के लिए भी पूछना, पढ़ाई के लिए खुद रिलेटेड है कुछ भी जानना है, इतना मुझे बता दिया इंडिया के बारे में। कुछ क्वेरी नहीं आई ये कैसे ये क्या अच्छा क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स जो आ रहा है। हाँ जैसे एनडीए हो जाता है उसके साथ आई क्लियर एनडीए एंड उसके साथ की डिग्री करनी हो तो उसके लिए ब्रेक्स मिलती है या कैसे? डिग्री अच्छा लाइक यूजिंग बीटेक वगैरह, जैसे आर्मी में जाते हैं यू डू सिंपल बीएससी, ठीक है, जैसे यूजिंग बेसिक केमिस्ट्री, बीएससी मैथ्स, ऐसे मिलता है। ठीक है, एनडीए में मिलता है ऑप्शन, लाइक आई एम इन आर्मी सो आई एम डूइंग बीटेक, जो फौज करवा रही है मेरे को, आई एम डूइंग बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। So if you are in army and you have to do compulsory BTech. But if you are in army, you will do BSc only. BSc CS, BSc chemistry and BA. BA. But if you are in army and Air Force, so आपको सिर्फ 2 choices like mechanical BTech, electrical and applied electronic communication. And the degree that you are pursuing is from JNU. JNU तो सुना है ना? तो उसकी डिग्री होती है तुम्हारे पास। वो अच्छी डिग्री होती है, फ्री में मिलती है, तुम्हें इसके पैसे नहीं देने, तुम्हें पढ़ाई करनी है। बीटेक इज कंपलसरी फॉर आर्मी एंड उसके बाद तुम फर्दर एमटेक भी करते हो, वो भी तुम्हें फौजी करवाती है। ऐसा नहीं कि तेरे को अगर तेरे को आगे और परस्यू करनी है तो तू व्हेन यू गेट कमीशन देन आल्सो यू कैन स्टडी, बहुत कोर्सेज होते हैं। तुम्हें बस पढ़ने वाला बनना है। यू एज अ लेफ्टिनेंट, एज अ कैप्टन यू कैन परस्यू दिस कोर्सेज बीटेक वगैरह, और इसमें से भी अलग फील्ड्स निकलती है बहुत सारी कि इंजीनियर, कोर ऑफ इंजीनियर्स वगैरह, टेक्निकल आर्म्स, टेक्निकल में जाना है, आर्टिलरी में बहुत चीजें होती है, वो तुम सीखोगे but you will get opportunity। या मेरी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2006 है, सितंबर अटेम्प्ट के लिए मेंशन है नॉट बोर्न बिफोर 2 जनवरी 2006। एक दिन का गैप ही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, एक दिन का गैप भी नहीं चलेगा। एक दिन का गैप नहीं चलेगा। अब तेरी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी है और उसमें एलिजिबिलिटी लिखेगी 2 जनवरी से पहले का कोई नहीं हुआ तो नहीं हो पाएगा। That is clear। जो written rules है वो है, rules are rules। There are मैं बोल दिया तुमको ये करना है, बात खत्म। और मेरा कि नेक्स्ट अटेम्प्ट है उसमें था, बहुत अटेम्प्ट्स मिलते हैं इन टोटल। तुम्हारे पास कितने अटेम्प्ट होते हैं? अराउंड 4 तो होते हैं, 4 साल के 4 तो होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। मतलब एक बार तुम जब +2 में अपीयर कर रहे हो, पास आउट करके हो, जब तुम 19.5 years कर, ठीक है, तो you get at least 2 attempts, but your best attempt is first attempt। It is not that कि हाँ मेरे पास 4 अटेम्प्ट है, अभी देखता हूँ फिर उसके में भी थोड़ा ऐसे तीसरे चौथे के लिए जान मारूंगा। Your best attempt is first attempt। उसमें निकल जाओ तो बहुत अच्छा है, जल्दी ऑफिसर बनोगे, जल्दी ग्रो करोगे, इंडिपेंडेंट हो जाओगे। सबसे बड़ी बात है कि इंडिपेंडेंट हो जाते हो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। घर वाले भी कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ भी करो जो करना करो। तो घर वाले भी पता है इंडिपेंडेंट है, कुछ नहीं बोल सकते, डांटने से पहले 2 बार तो ये क्या है, इसने बोला सेम रूल कि लास्ट अटेम्प्ट है एसएसबी का, इसका रिटन क्लियर है एसएसबी 2 बार कॉन्फ्रेंस आउट है, रिटन क्लियर एसएसबी का लास्ट अटेम्प्ट। तो यू विल बी अपीयरिंग थर्ड टाइम अटेम्प्ट हो रहा है ना, तो
सर्विस अगर तेरी आर्मी वगैरह कौन सी है, देख एसएसबी का मेरा भी थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था, पहले दोनों बाद में कॉन्फ्रेंस आउट हुई। तो मेरा माइंडसेट क्या था थर्ड टाइम के लिए, जब मैं पहली बार गया था एसएसबी देने, तो आई वाज रियली साइक्ड अप कि यार कैसे करना है, ये करना है, ये करना है, मतलब थोड़ी भी चीज मतलब मैं पहले से सोच लेता था, अच्छा ये टेस्ट ऐसे देना है, पर अगर लेफ्ट राइट से जाता ना बस मैं घबरा जाता था। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसे रहा, सेकंड में मैं थोड़ा काम डाउन हुआ, ठीक है। थर्ड में मैं सोच रहा था कि आई वेंट विद द माइंडसेट कि अगर होगा तो होगा, मतलब डोंट टेक टू मच प्रेशर कि यार लास्ट अटेम्प्ट ये होगा नहीं होगा, हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, ठीक है। मैं इस माइंड से गया, फौज ने लिया नहीं लिया तो नहीं लिया, और जब ये थर्ड टाइम में था ना इसका जो तीन जस्ट गिव योर बेस्ट। मेरा सेकंड में हो गया था भाई, हुआ नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें फिर नहीं होता, जस्ट गिव द अटेम्प्ट, ठीक है। हैव दैट माइंडसेट कि परफॉर्म करो, आई हैव टू गिव माय बेस्ट। ये नहीं करना कि मेरे को किसी को गिराना है। अगर मेरे ग्रुप में साथ में 4 जने हैं बोलने वाले, तो ऐसा नहीं कि मैं सबसे ज्यादा बोलूंगा, उन 4 को बोलने ही दूंगा मैं। यू हैव टू आल्सो लिफ्ट योर कोर्समेट्स, यू हैव टू मेक अ स्टैंड कि हाँ कि तुम्हारी बातें भी सुने हो, ठीक है। जस्ट गिव योर बेस्ट। अगर तू भाई 2 बार कॉन्शियस आउट हो गया, मतलब यू हैव इट इन, मतलब तू थोड़ा सा रह दिया, थोड़ा सा रह रहा है कहीं से किसी जगह से, like they इंट्रोस्पेक्ट है, इंट्रोस्पेक्ट। like they wait for a last attempt to come, तुम आओ वो तोड़ेंगे तुम्हें नहीं, और इम्प्रूव करके आओ और इम्प्रूव करके आओ। सो अगर ये इंसान है इसको लग रहा है लास्ट अटेम्प्ट है, मे बी दिस इज अ गोल्डन अटेम्प्ट बिकॉज़ दे वांट टू इम्प्रूव एंड कम। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, मैं 90% लोगों को देखा लास्ट अटेम्प्ट में, मेरा तो सेकंड था, मेरा लास्ट था, फिर थर्ड लास्ट था, हम दोनों लास्ट अटेम्प्ट में रिकमेंड हुए। सो दिस इज अ गोल्डन अटेम्प्ट, हो जाएगा ये बस इंट्रोस्पेक्ट, ये भी देख कि हाँ पहले से भी में दूसरे से भी मैंने क्या क्या गलती की, ठीक है। और बस यही है कि गो विद द चिल माइंडसेट, ठीक है। डोंट बी टू साइड की लास्ट घंटे वगैरह, बस अपना बेस्ट देना है। और एसएसबी का मतलब क्या होता है, सच सच बोलो, हमारे सर होते हैं सच सच बोलो, झूठ बाजी जो है। अगर तुम बोल रहे हैं सर कि आर यू अ गुड पर्सन, अगर तुम्हें लगता है नो सर आई एम नॉट अ गुड पर्सन, तुम लोग पूछेगा व्हाई आई एम अ गुड पर्सन, और पूछा व्हाई तो बोलो सर मतलब यू हैव शुड हैव अ जेन्युइन रीजन, ऐसा नहीं तुम कुछ भी थिंक के आ रहे हो वहां पे, ठीक है। हां जो है वो है, सब जैसे हो तुम, इसलिए हम अभी से बोल रहे तुम 10th में तुम्हारा टाइम अपनी पर्सनालिटी मोड करनी है। अब तुम ऐसे नहीं है कि रिटर्न क्लियर कर लिया, अब एसएसबी के लिए 1 मंथ है, मैं तो ऐसे चेंज करूंगा पर्सनालिटी, ठीक है, ऐसा नहीं होता। अभी से थोड़ी अच्छी चीजें इंस्टॉल करो, तब जाके दे बिकम अ पार्ट ऑफ यू, ठीक है। मतलब मेरे साथ कोई नहीं खेलता कोई भी स्पोर्ट, जैसे वहां पर इन्फॉर्मेशन होती है प्लेइंग स्पोर्ट वगैरह, कोई लोग ऐसे लिख देते हैं हाँ आई प्ले दिस, फिर जब उसको इंटरव्यू ऑफिसर पूछता है अच्छा इसमें क्या क्या है ये, फिर वो चुप हो जाता है। तो डोंट डू दैट, जो है वो है। अगर स्पोर्ट्स नहीं खेला तो बोलो सर नहीं खेला, नहीं क्योंकि खेला सब लोग अच्छे बैकग्राउंड से हैं। फिर वो पूछिए अभी क्यों नहीं खेला, देन यू शुड हैव आंसर फॉर दैट, यानी कि यस और नो में, मतलब यू शुड नो योर रीजनिंग। If you are in 10th ना, तो अगर तुमने किसी को सुना सैनिक स्कूल, पता है किसी को? Like there is one सैनिक स्कूल in Himachal, only one Sujanpur, and there is RMS schools, राष्ट्रीय मिलिट्री schools. So वो लोग 6th 8th क्लास से एनडी कोचिंग करते हैं। उनको भी वो माहौल मिल चुका है, रनिंग, स्विमिंग, एनडी के सीनियर्स बोल रहे हैं, सीनियर एक्टिविटी देख लिया। अब तुम्हारा ऐसा केस नहीं है, तुमने सिविल लाइफ देखी है, तुम्हें पता नहीं है क्या होती है फौज, क्या सीनियर जूनियर होता है, क्या रनिंग होती है, क्या स्विमिंग होती है, क्या पढ़ाई होती है, तुम्हें ये भी ढंग से नहीं पता है। सो तुम्हारी गलती नहीं है कि तुमने स्पोर्ट्स नहीं खेला है, तुम्हें मौके नहीं मिले। तुम बस ये बताओ सर मैं इस बैकग्राउंड से आया हूँ, मैं ऐसा बंदा हूँ, मेरे माँ बाप ये करते हैं, मैं ऐसा पढ़ाई में हूँ, सच बोलो। अगर वो तुम्हें फिजिकल तुम सेलेक्ट करेगा, उसको ऐसे उनको अपने अच्छी साइड भी दिखानी है, अच्छी साइड दिखाना। ये भी नहीं कि मैं कुछ नहीं करता सर हाँ, बैठा थोड़ा रहता हूँ, करना भी पड़ेगा। मैं देखता रहता हूँ, तब तो ऐसा है स्कोर स्किल्स, ये नहीं, मतलब अगर तुम कहीं कुछ नहीं कर रहे तो कहीं और कुछ करो, ठीक है। दैट इज वर्क। रीड बुक्स यार, हैबिट लगाओ, बहुत अच्छी हैबिट है वैसे, बुक्स रीड करनी है। Yeah. I school allowed medical. नहीं हो, you have to correct, I still हो जाता है ठीक नहीं हो। After surgery allowed. हाँ सर्जरी तो सर्जरी का तो वो नहीं पढ़ना चाहिए, तो तू फिर टाइम से सर्जरी कर, टाइम से करानी पड़ेगी। अगर if you are serious, फिर सीरियस टाइम से ठीक रहो। तो बता करना है तो करा। ये तो पढ़ाई है भी, बहुत कुछ सुनने को मिलता है उसके बारे में। वी सी पीपल जैसे शर्ट खोल के बाहर से चलते हैं और टायर यहाँ तक आ रही है और लड़कियों के हाथ से फोन ऐसे लगा रही है। वो हमको हम अप्रोच करना चाहते हैं कि यू आर विच क्लास, वो करने का मन नहीं करता। लाइक सम ड्रेस कोड इज देयर, यू गो टू आर्मी, यूनिफॉर्म इज एवरीथिंग, लाइक इवन स्मॉल थिंग्स आर चेक्ड। इतना सा दाग यूनिफॉर्म में, दैट इज अ शेम। दाग कहाँ से आ गया यूनिफॉर्म, और तुम लोग ऐसे
खोल के टाई यहाँ पे ये स्टेज ऊपर पैंट गंदी ऐसे चल रहे हो ये आता है, एक स्टेज आता है। स्टेज आता है तुम्हारी गलती में स्काई पर ये है कि सही टाइम पे रास्ते आ जाओ। हाँ रिश्ते पे आ जाओ दो होते हैं, एक जो बह जाते हैं, जो आ जाते हैं। लाइक तुम सब गवर्नमेंट जाते हो स्टेज से आए। तुम लाइक यू हैव सम स्टैंडर्ड इन स्कूल लुक्स इज बेस्ट सो यू शुड ड्रेस कोड होता है यू स्टार्ट ऐसे क्वालिटीज अडेयर करोगे तुम्हें अच्छा लगेगा सेकंडली वी आर यू डोंट रिस्पेक्ट टीचर्स टुडे तुम्हें टीचर्स जोर से बोलते तुम ऐसे और हां बोले बोलते अरे हम तो ऐसे चुप बोलते थे, हमें तो ऐसा लगता था कि ऐसा आता था सर ये सर क्लास वाले काल लोग पर बड़े के फिर पढ़ाई शुरू होगी मारा करो सर आप हां सब सुधरेंगे। तो लाइक ऐसा मत बोलो बर्थडे होता है जिस दिन, हाँ उस दिन तो बर्थडे हम मिलते हैं बीच में। वहां पे मिलते थे वहां चार बंदे को ऐसे खड़ा करेंगे, सर खुद सर आते थे शुरू और सर खुद आते शुरू करते लाते नीचे और सर अब तो साथ करके काफी चेंज हो गई जनरेशन ठीक है। फिर ये सब नहीं करना है मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि बस ये है कि सर हमको इतना मालूम होते हैं पर वी यूज्ड टू रिस्पेक्ट हिम, ठीक है। रिस्पेक्ट ऐसे नहीं, रिस्पेक्ट एक अलग चीज है एंड रिस्पेक्ट And the line of respect. बॉयज तो उल्टी सीधी बातें मत किया करो भाई जो नशे वशे बहुत होते हैं आजकल वो सब मत करो लिटरली मत करो गालियां वालियां हम भी नहीं थे अच्छा है बोल रहा हूं, पर मैं बोल रहा हूं मैं गाइड कर रहा हूं योर माय जूनियर्स हम दोनों जितना जूनियर से प्यार है ना तो पूरे तुम्हें किसी सीनियर से नहीं बोलो कि हम जूनियर हमारे एकेडमी जूनियर से प्यार करते हैं एंड व्हेन आई सी अ लुक राइट नाउ मेरे को मन करता है कि उसको अप्रोच करूं उसको बताओ हाउ आर यू कैसे हो तुम चलो कहीं चलते हैं मन करता है सही में ऐसा स्पेशली 10th ग्रेड किसी को कोई भी क्वेश्चन होगा बोल देना। कोई कभी भी इंस्टाग्राम पे करो तुम मैसेज तुम नंबर लेके मैसेज करो सर भैया मुझे प्रॉब्लम आ रही है भैया मुझे हेल्प करो हम 12 बजे पहुंच जाएंगे बिकॉज़ वी हैव दैट लव फॉर आवर जूनियर्स हम चाहते हैं यहाँ से बंदे ही नहीं निकलते हिमाचल से हरियाणा वाले भर रखे हैं पंजाब वाले भर रखे हैं यूपी एमपी वाले भर रखे हैं पूरी एकेडमी में 10 लड़के हैं हिमाचल में 10 सिर्फ 10 और वो हरियाणा वाले पूछते हमसे तुम्हारे बंदे कहाँ हैं हम यहाँ आके पूछते हैं सर से नशे कर बंदों के बीच में लड़ाई कर रहे हैं फोन चला रहे हैं बहुत अच्छा लगता है कोई हिमाचल का आता है उसमें जूनियर आते हैं मैंने पूछा एक सिर्फ 400 में से एक लड़का आया कहाँ से हो सर मैं कांगड़ा से हिमाचल रोने आ गए थे सच्ची रोने शुक्र है एक तो आया और वहाँ हरियाणा झज्जर पता नहीं कहाँ से भरी जा रहे हैं तुम करो कुछ यार तुम तभी आए तुम्हारे सामने कुछ करो तुम ऑफ ट्रैक जा रहे हो बहुत ऑफ ट्रैक जा रहे हो तुम जाओगे तो स्टेट्स में आ जाओगे तो बहुत पढ़ रहे हो मेडिकल्स के मतलब इशू अगर तुमको जनरल जो लगता है कि है अभी से मैं तो ऐसे कॉमन लगता क्या है। होते हैं नॉकनीज वगैरह होते हैं वो चीजें तुम अभी से सही कर सकते हो। आई सेड ठीक है तो अपनी ओवरवेट अंडरवेट मत रहो यू शुड बी फिट हाँ ये एक बहुत बड़ी बात है जैसे सोलन के जो बच्चे रहते हैं दे आर वेरी वीक फिजिकली एंड मेंटली बोथ सो यू शुड बी फिजिकली फिट पर्सन ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम्हें आर्मी जाना तो तुम्हें होना पड़ेगा ये लाइक व्हेन अभी भी हम टू एनी फील्ड, ठीक है, एनी फील्ड यू शुड बी फिजिकली फिट इट इज नॉट दैट कि हां मैं कुछ में जाना है इसलिए मैं एटलीस्ट उसमें 2 किलोमीटर भागना आना चाहिए थोड़ा रनिंग आनी चाहिए पुशअप पुल अप मारा करो गर्ल्स के लिए भी बहुत जरूरी है ठीक है ऐसा नहीं कि लड़के करेंगे यू शुड बी फिजिकली फिट पर्सन ऐसे यहाँ पे बहुत सी लड़के होते हैं आते हैं एक पुशअप नहीं मारा जाता भागने में सांस फूल जाती है स्विमिंग पूल तो चलो नहीं है यहाँ पे इतना कुछ पर स्पोर्ट्स खेलना आना चाहिए तुम्हें पढ़ाई में मत सुननी चाहिए यही टाइम है तुम्हारे पास 12th के बाद नहीं मिलेगा उस टाइम 10th के बाद टाइम मिल रहा है तुम्हें फोन में मत घुसे रहो थोड़ा इम्प्रूव करो कहीं जाओ एक कोई स्किल सीखो गिटार सीखो पढ़ाई में ध्यान लगाओ गिटार सीखो पियानो सीखो रनिंग में अच्छा रनिंग करो फुटबॉल खेलो एकेडमी ज्वाइन करो बहुत कुछ कर सकते हो तुम यार तो कुछ जाओ तो सही बस फोन में घुस के बस 24 घंटे रील्स क्या होता है we don't get phones in India we don't get phones this I am using after 5-6 months हां this वहां पर फोन तुम्हारा सबमिट होगा बंद and I don't even know घर पे बात करनी है तो एक डब्ल्यूएल होता पता है नहीं चलता वायरलेस कौन टाइम करोगे। वो अपॉइंटमेंट से बात होता है सिस्टम से बात तो संडे को दे देते हैं तो संडे को थोड़ा टाइम पास छोटा सा फोन पता है ना बटन वाला वो हम यूज करते हैं संडे में तो एनडी का होता नहीं इंडिगो वायरलेस टाइम होता है wireless है। हम वो छोटा सा फोन यूज करते हैं घर पे बात करने के लिए संडे टू संडे बस महीने में 4 बार घर पे फोन जाता है मैं ठीक हूँ क्या कर रहे हो बस 2 घंटे बाद बस। वो छोटा वाला फोन उसमें कभी नेटवर्क नहीं आता कभी बैटरी नहीं होती कभी आवाज नहीं आती मतलब 5 मिनट हम फोन देखते ही नहीं हाँ, कट ऑफ कोई मतलब नहीं है फोन से अब आता तो इतना मन नहीं करता फोन देखने में कोई आदत ही नहीं है अब अभी भी आते हैं भी रनिंग करने मैं रनिंग करने जाता हूँ रोज सुबह और दोस्तों से मिलते हैं दोस्तों से अच्छा लगता है बात करके सही है उसको कुछ जो रेस्ट करते हैं रेस्ट करने के टाइम और अभी सेमिनार कंडक्ट करने का सोचा तो मेरे सामने है बताने के लिए
कैसे ऐसे कर सकते हैं। These are not points for ban. सर ने बोला कि थोड़ा गाइड करना एंड दिस नशे बहुत मत करो अभी अभी तुम्हारी उम्र ही नहीं है और तुम ये सब कर लोगे तो तुम ग्रो कैसे करोगे। लाइक काफी when I was in 10th I was around 5 10th तो अभी देख टॉमी 11th के तो लाइक इट इज बहुत तुम्हें नुकसान कर रहा है। नहीं करनी चाहिए बॉयज गर्ल्स भी करती हैं तो वो भी नहीं होना चाहिए। और ये जो उम्र होती है रिलेशनशिप्स की सिचुएशंस की ये तब होती है जब तुम्हें कुछ उखाड़ा हो। लाइक तुम जाओगे कहीं पे तो पता चलेगा ना क्या करते हो तुम्हारे 12th में तो सभी कुछ उखाड़ो पहले जिंदगी माँ बाप के लिए करो कुछ। माँ बाप भी जाए कहीं पे हाँ मेरे बेटे नहीं उसके बाद होता है थोड़ा टाइम बचेगा से कुछ सवाल है Q&A के लिए लास्ट 5-10 मिनट्स। अभी ये मैं सोचो कि यार हाथ उठाएंगे तो ये देखने लग जाएंगे जल्दी पूछो तो यू नॉट गेट दिस अपॉर्चुनिटी एवरी डे। कोई भी क्वेश्चन कुछ भी है किसी से भी रिलेटेड या थोड़ा गाइड बेटम क्वेश्चन है कुछ भी है ये मत सोचो अपनी क्या एक विल बी एम्बैरेसिंग वगैरह ये नहीं चाहिए इंडिया में तो ये चीज एम्बैरेसमेंट छोड़ दो तुम्हारी क्लास सारे तुम्हारी क्लास वाली है क्लास वाली है एज ग्रुप है तुम्हारा हमारी एज ग्रुप में आपस में साइकोलॉजी टेस्ट में क्या आता है एग्जांपल्स साइकोलॉजी टेस्ट में क्या आता है मैं बोला इट इज अ 3 आवर टेस्ट मतलब 3 घंटे के लिए होता है उसमें सबसे पहले स्टोरी टेलिंग स्टोरी टेलिंग में क्या होता है गेट 11 स्लाइड्स एक स्लाइड दिखाएंगे पहले 30 सेकंड्स के लिए उसमें मतलब इट विल बी पिक्टोरियल कुछ भी हो सकता है उसमें कुछ भी मतलब पिक्चर होगी सिंपल सी सिंपल पिक्चर होगी ऐसे नहीं है समझ लो तुमने एक पिक्चर है उसमें हाथी है सिंपल सा हाथी है वो बॉल है एक लड़का है बस इतनी पिक्चर है 30 सेकंड्स के लिए दिखाइए देन इट विल गो अवे देन यू विल हैव 4 मिनट्स ऑफ टाइम you have to write a story you have to write a story on that अब तुम्हारे मन में जो फर्स्ट थॉट हिट करता है कि अच्छा जो भी तुम परसीव करते हो एंड इट शुड बी अ प्रॉपर स्टोरी यू शुड हैव अ मेन कैरेक्टर स्टार्टिंग मिडिल एंड हाँ एक स्टोरी है और 4 मिनट हो गए 4 मिनट बाद सीधे नेक्स्ट पिक्चर एक और पिक्चर है जैसे मतलब इट इज अ टाइम बाउंड टेस्ट तुम्हारे मतलब दिमाग को पूरा वो कर देते हैं कि प्रेशर डाल देते हैं तो ये होता है कि जो तुम्हारा फर्स्ट थॉट आता है ना मतलब तुम सोच नहीं सकते उसमें ज्यादा दैट इज जब जो तुम पिक्चर देखते हो ना तुम्हारी पर्सनैलिटी जैसी होगी जैसा तुम रिसीव कर रहे हो तुमको वैसे ही लिखना पड़ेगा सेकंड पिक्चर विल कम 30 seconds विल गो अवे 4 मिनट स्टोरी बैक टू बैक कितनी 11 पिक्चर्स और 12th स्लाइड होती है ब्लैंक मैं अपनी स्टोरी लिखूं ब्लैंक में कुछ भी लिख दो ब्लैंक से अब ये बात है ब्लैंक में तुम्हारी टेस्ट ये हो गया इसको बोलते हैं ये हो गया तुम्हारा Tag होता है। हां टैग Tag बोलते हैं इसको एक टेस्ट होता है वर्ड एसोसिएशन उसके नेक्स्ट और इसमें ब्रेक नहीं है बिल्कुल ये अब सीधे इसके बाद आ गया बैक नेक्स्ट टेस्ट उसमें होता है जैसे एक word ही शीट होती है पूरी नेक्स्ट टू नेक्स्ट करते हैं जैसे यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स हां स्टूडेंट्स तुम इससे भी 10 सेकंड के लिए लगेंगे हां 10 सेकंड हो जाता है 10 सेकंड अब तुम्हें सेंटेंस लिखना 10 सेकंड में तुमको वर्ड देखना है और सेंटेंस लिखना है फटाफट सेंटेंस लिखना ऐसे आएंगे 60 वर्ड्स ऐसा है कि कितने बैक टू बैक 60 वर्ड्स तुम्हें 60 सेंटेंस लिखने 60 हैं सेंटेंस एक घंटे के होते हैं हाँ आइडिया लगा लो टाइम के हिसाब से तो बैक टू बैक 60 वर्ड्स आएंगे अब जनरल वर्ड होंगे स्टूडेंट जनरल होंगे की रेड thief गुड good Good, bad bad. school स्कूल कुछ हो सकता है कुछ भी जनरल टर्म्स नेशन किल नेशन ब्रेव सोल्जर कुछ हो सकता ऐसे नहीं कि हाँ प्रिटेंड टू आज में आएगा है प्ले आउटडोर एक्टिव हाँ, इनएक्टिव कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है 60 60 वर्ड्स बैक टू बैक एंड यू गेट 10 सेकंड्स फॉर ईच वर्ड उसमें तुमको वर्ड देखना भी है और सेंटेंस लिखना भी है इसके बाद क्या है तुम्हारे उसके बाद सीधे एसआरटी सिचुएशन हाँ रिएक्शन ये अब सीधे अब कोई भी लिखनी है 10 सेकंड लिखने क्या अब सीधे एसआरटी पे चलेगी तुम नेक्स्ट टाइम सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट उसमें तुमको कितनी 30 सिचुएशन होती है 60 60 सिचुएशन है 60 सिचुएशन होती है लाइक तुम्हें कि- सिचुएशन होगी हाँ। जैसे यू आर गोइंग टू स्कूल ठीक है एंड यू सीन कि किसका एक्सीडेंट हो गया व्हाट यू विल डू यू विल गो टू स्कूल अब तुम्हारा एग्जाम है मैथ्स का एग्जाम है अब तुम मैथ्स एग्जाम में जाओगे किस हेल्प करोगे ऐसा ही सिचुएशन है अब तुम्हारे घर पे एक सिचुएशन है घर पे माँ बीमार है ठीक है और तुम्हें पढ़ाई करनी है तुम्हारा पेपर है कल तुम क्या करोगे कैसे माँ का ख्याल रखोगे पढ़ाई करोगे और ऐसे ही बहुत टाइम मिलता है ये भी 60 सिचुएशंस तुमको 15 मिनट में 15 मिनट खत्म नहीं खत्म करनी है कि आई वाज गोइंग टू मार्केट ऑन द वे आई सॉ an accident एन एक्सीडेंट आई डैश 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 I will do क्या करोगे अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं कि आई वाज गोइंग टू बाय ग्रोसरीज ठीक है टू मार्केट एंड इन बिटवीन आई सॉ अ ग्रुप ऑफ जनरल टीनेज बॉयज ऑफ माय एज फाइटिंग ठीक है
आई डैश 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 डैश। अब क्या लिखोगे तुम? रोकने जाओगे? ये लिखोगे? You have to be realistic. अब ये नहीं कि तुम मेरे को हाँ कि मेरे को impress करने की अच्छा मैं जाऊँगा लड़ाई रोकूंगा है ना, मार के 4 बंदों को मारूंगा सब हो जाएगा सारे। हाँ ऐसे नहीं जो What can you do in that situation? You cannot do nothing. करोगे तुम इसलिए इससे जाओगे लड़ाई हो रही है तुम बिजी हो अब तू खुद से पूछ, सही में लड़ाई हो रही है, माल रोड पे लड़ रहे हैं ग्रुप, क्या करेगा? देखने बैठ जाओगे बोलो हैं? रियलिस्टिकली ऐसा करना चाहिए इग्नोर करने दो लड़ाई तुम नहीं कर सकते कुछ लड़ाई यार, तुम रिपीट हो तुम्हें गया लड़ाई लड़ाई तुमने थोड़ी लड़ाई तुम्हारे सर दर्द नहीं है, ठीक है? तुम कुछ नहीं करोगे, जाके अब ये मत देखना कि हाँ इग्नोर कर रहा है ऐसे, तो इट इज योर टेस्ट, ठीक है? यू हैव तुम्हारी पर्सनैलिटी तुम क्या करोगे सिचुएशन में? और एक लास्ट टेस्ट होता है कि तुम्हें 4 चीजें लिखनी थी ऐसे होता है पेरेंट्स भी नहीं लिखने तुम्हें अपना मतलब लिखना हाँ उसके बाद तुम्हारे पेरेंट्स क्या सोचते हैं तुम्हारे 15 फ्रेंड्स मिनट ओपिनियन अपना ओपिनियन और टीचर हाँ 4 चीजें का ऐसे लिखना ऐसे लिखना है वो भी 15 मिनट में 15 मिनट होता है थोड़ा सा तो मतलब 3 घंटे का तुम्हारा ऐसे दिमाग तुम्हें ऐसे लिखना है माय टीचर्स थिंक दैट आई एम this kind of student my positive points are this they tell me to improve me on these points नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस। अब तुम ओपिनियन पूछ लो किसी का भी, अपने फ्रेंड से पूछ लो, तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत ही तारीफ ही मिलेगी बस, है ना? यू नो कि मेरी भी क्या गलती है ना उसमें, क्या सही क्या है मतलब मैं improve करना चाहिए तुम पूछो दोस्तों से तो ऐसा देख रहे हो तुम तुम्हें रीथिंक करिए जब तुम प्रिपेयर ये तुम्हारा एक साइड टेक्स्ट है बस, 3 मिनट का एक साइड साइकोलॉजी में होता है इंटरेस्टिंग लग रहा होगा फिर सुनने में पर देना चाहिए तुम्हें और देने में और इंटरेस्टिंग है काफी मजा आता है। और कुछ किसी का सवाल 11th क्लास में PCMB लेना बेनिफिशियल होगा। 11th क्लास में तुम्हें हो गया PCMB PCMB तो हैंडल कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। करते हैं ऐसी बात नहीं करते हैं, हाँ। सुजानपुर में लड़के ने PCMB लिया था उसने एनडीए में दोनों अभी you should know your aptitude। PCMB अब तो ले रहा है, अभी नहीं कि बस इससे मेरे को अपॉर्चुनिटीज काफी मिल जाएगी तो मैं ले लेता हूँ। अब तो पढ़ना भी पढ़ना पड़ेगा, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी फिर वो बात है। मेरा दोस्त है एक अमितेश था क्लासमेट, उसने भी PCMB लिया था क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली। मैं को मैं नहीं लेता PCMB, no I was not medical मतलब हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, मतलब डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स, ठीक है? फिर वही है कि पुटिंग मारना पड़ेगा PCMB पढ़ना पड़ेगा। ऐसे लोग होते हैं ऐसे नहीं होता कि PCMB ऐसे नहीं कि PCMB मेरे साथ के दोस्त हैं उन्होंने नीट भी निकाला एनडीए भी निकाला और वो एनडीए उनकी मर्जी तो if you can enter it is on your potential मेरे को नहीं पता तुम ऐसा स्कूल में और ऐसा मत करना दोस्तों को देख के अच्छा मेरी फ्रेंड हाँ। वहाँ जा रही है मेडिकल में तो मैं भी मेडिकल में और मेरा फ्रेंड भाई मेरा वहाँ जा रहा है कॉमर्स में तो मेडिकल क्यों जाऊँगा मेरा भाई क्यों जाऊँगा ऐसा मत देखना तुम्हारा करियर है ये तुम अपना करियर डिसाइड करना ठीक है दोस्ती वोस्ती सेकेंडरी होती है। कोई लास्ट क्वेश्चन? जैसे रिटर्न क्लियर हो गया और एसएसबी नहीं होती है तो रिटर्न फिर से देना पड़ेगा। हाँ देना पड़ेगा प्रोसेस दोबारा एक एनडीए का एग्जाम एक साल चलता है पूरा रिटर्न एसएसबी मेडिकल मेरिट तुम्हें साल में 2 बार होते हैं एनडीए में, एक नवंबर में एक अप्रैल 18 अप्रैल और 18 अप्रैल नवंबर 26 अप्रैल ठीक है भाई। और कुछ दूसरा स्क्रीनिंग टेस्ट को किस बेसिस पे नेशनल स्क्रीनिंग टेस्ट में तेरा यही होता है बेसिकली, तेरा जो साइकोलॉजी बोला ना मैंने, तो इसमें देखो 11 पिक्चर्स नहीं, एक ही पिक्चर आएगी, एक पिक्चर आ गई उसने स्टोरी लिख दी, उसके बाद तुमको क्या करेंगे 10-10 में बांट देंगे, 10 या 15 में, पर 10 तो नहीं होता, 15 या 12-15 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, सामने तुम्हारे बैठे 3 एसएसबी बैठे 3 एसएस बैठे हो गए, सब पहले एक एक करके नरेट करेंगे अपनी स्टोरी। तुम जैसे ही खत्म करोगे ना स्टोरी वैसे ही तुमसे पेपर छीन लेंगे, तो तुमको अब एक एक करके नरेट करनी सब कुछ होगी वैसे ही जो तुमने लिखी है, एक एक करके नरेट करोगे, जब सारे खत्म कर देंगे नरेशन तब तुमको बोलेंगे ओके नाउ गिव मी अ कॉमन स्टोरी। अब 15 जने उसने 15 जनों बोला 15 स्टोरी लिखी 15 जन ने 15 स्टोरी लिखी है। अब वो उसने बोला कि तुम मेरे को आपस में डिस्कस करके एक स्टोरी दो, अब वहाँ पता चलेगा तुम ग्रुप के साथ हो कि हाउ यू हैंडल ग्रुप को गालियाँ दे रहे हो तो ग्रुप को अब देखो अब हर बंदा चाहेगा कि मेरी स्टोरी है, मानता ही नहीं, मैंने हर बंदा बोलेगा वही ना, लास्ट में एक हाँ, ग्रुप चुनेगा वो ग्रुप चुनेगा। अब वही तेरे डायनामिक्स चेक होते हैं कि ग्रुप किसको चुनता है, ठीक है? ऑब्वियसली